Hello friends, welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester, subject code as a 22566 of 5th semester. Practical number 2, maintain various components of hydroelectric power plant using models, charts, simulation and real video. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Learning outcomes. After completion of this practical, you are able to maintain various components of hydroelectric power plant. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. So, we go for introduction to hydroelectric power plant in last lecture. Is that hydro means water and generation of electricity, that's called as a power plant. It means hydroelectric power plant is nothing but the power plant is a set of equipment to produce electricity or energy by using resources like water. इसका मतलब ये है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी सेट ऑफ इक्विपमेंट्स होंगे जिसका हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज करेंगे और इसमें स्पेशली वाटर एज ए रिसोर्स यूज करेंगे, इसलिए हम इसको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कह सकते हैं, HEPP. So we have discussed about hydroelectric power plant in last lecture. So in this lecture, we discuss in details of hydroelectric power plant, its components and generation of electricity with the help of power plant. In this diagram, you learn and understand the flow rate of water from this white arrow, and that effect is the rotation of turbine continuously, and that rotation of turbines means generation of electricity like that. Also the remaining water is flow from draft tube. So that is a some difficult diagram in exam point of view. तो आपको ये डायग्राम को प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. It is simple diagram to draw in exam and shows all the components of hydroelectric power plant used to generate electricity, as that dam, pressure tunnel, gates, water flow, surge tank, penstock, inlet wall, turbine, draft tube, electric generator, transformer, electric cables and power lines. So understand by this animation how hydroelectric power plant work. Now we discuss about general layout of hydroelectric power plant. That's simple diagram you are visualized sometime before. So that's in exam, ask the question, draw the general layout of hydroelectric power plant. Then you prepare this diagram for the simple layout of hydroelectric power plant. It consists of reservoir to store the water. Also, dam is there to provide the sufficient head of water. That's a pipe is called as a penstock. That's different elements is arranged to control flow and store the temporary water during the flow.
That's a turbine. Turbine is nothing but the conversion of kinetic energy into mechanical energy. That's also connected to electric generator, and this electric generator produce EMF during rotation, and this EMF, electric flux, modify in transformer and produce electricity for utilization. तो ये सिंपल डायग्राम है जो आपको एज ए जनरल लेआउट या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट करके प्रिफर करना है. So show all the components of hydroelectric power plant in this simple layout. आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट और उसके फंक्शंस. तो यह हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि आपने लेआउट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में देखा. तो इसका मेन कंपोनेंट है फर्स्ट रिजर्वायर. रिजर्वायर का काम है वाटर को स्टोर करना. देन इसके बाद में है डैम. डैम का फंक्शन है रिजर्वायर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, और ये डैम रिजर्वायर की कैपेसिटी को तो इंक्रीज करता है, साथ में वाटर का हेड भी इंक्रीज करता है. नेक्स्ट है सर्च टैंक. तो ये सर्च टैंक आप यहाँ पे देख रहे हैं. सर्च टैंक इन बिटवीन होता है इन पेनस्टॉक में, जो कि डैम के बाद और टरबाइन के पहले होता है. तो आइए समझते हैं टरबाइन का फंक्शन. तो ये एक एनिमेटेड पाइप्स है जिसमें वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, और जब सडनली वाटर इस वॉल से क्लोज होता है तो वाटर बैक फ्लो करता है, और जब वाटर बैक फ्लो करता है तो इस बिटवीन ये सडनली राइज होता है. तो इस सडनली डिक्रीज और बैक फ्लो ऑफ वाटर जो पाइप का एरिया बढ़ाता है, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं वाटर हैमर. तो हमारे इस सर्च टैंक के दो फंक्शंस है. फर्स्ट है ये वाटर हैमर जो बैक फ्लो हो रहा है सडन क्लोज ऑफ वॉल्स, तो इसको एलिमिनेट करने का काम करता है. साथ में जब हमें हाई प्रेशर वाटर रिक्वायर्ड है, जब लोड बढ़ रहा है, उस कंडीशन में एडिशनल वाटर सप्लाई का काम ये सर्च टैंक करेगा. नेक्स्ट है पेन स्टॉक. तो पेन स्टॉक एक पाइप है. इस पाइप से जो वाटर फ्लो होगा फ्रॉम रिजर्वायर डैम टू सर्च टैंक एंड पेन स्टॉक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. और इस पेन स्टॉक का जो कंस्ट्रक्शन है वो इंक्लाइन डाउनवर्ड होता है, जो कि इजीली पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. पर पेनस्टॉक ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये इंटरनल प्रेशर को सस्टेन करने का भी काम करता है. नेक्स्ट है स्पिलवे. ये जो स्पिलवे है ये डैम के साइड में अटैच होते हैं, जो कि एक फ्लोवेज भी बोल सकते हैं, जो डैम को सेफ्टी रखने का काम करता. व्हेन वाटर लेवल इंक्रीज, देन एक्सेस वाटर फ्लोज बाय स्पिलवे फ्रॉम रिजर्वायर. नेक्स्ट है पावर हाउस. तो ये पावर हाउस जो एलिमेंट है जिसमें जनरेटर से लेके टरबाइन तक ये सारे एलिमेंट्स आते हैं. इस पावर हाउस में एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिसका आधा पोर्शन टरबाइन के बिलो अंडर वाटर होता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो पोर्शन होता है वो एटमॉस्फेरिक लेवल पे होता है, अबाउ ग्राउंड लेवल. Prime mover. Prime mover means conversion of kinetic energy into mechanical energy. That means a turbine. यहाँ पे हम टरबाइन, रिएक्शन, इम्पल्स, कैप्लन, फ्रांसिस इस टाइप की टरबाइंस का यूज कर सकते हैं. पर जब रिएक्शन टरबाइन का यूज करते हैं तो उसके साथ गवर्नर यूज करना कंपल्सरी है. ऑल्सो लास्ट इज ए ड्राफ्ट ट्यूब. ड्राफ्ट ट्यूब इसका ये फंक्शन है
कि जब वाटर फ्लो होगा और टरबाइन तक आएगा तो टरबाइन काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इस मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। पर आफ्टर रोटेशन ऑफ टरबाइंस यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स प्रेशराइज फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। इस वाटर कंटिन्यूअस टरबाइन में अगर रोटेट होता है तो टरबाइन के ब्लेड को डैमेज करता है। तो इस वाटर को बाहर निकालने का जो काम है वो ड्राफ्ट ट्यूब करता है। तो इस ड्राफ्ट ट्यूब से हम वाटर रिवर में रिटर्न करते हैं और रिजर्वायर में भी वापस सेंड कर सकते हैं। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब जो है इट सप्लीमेंट्स द एक्शन ऑफ द रनर बाय यूटिलाइजिंग मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर at the discharge end of the runner. The draft tube is a diverging discharge passage connecting the running with tail race. Now we discuss types of hydro power plants. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम डिटेल व्यू देखते हैं। तो फर्स्ट है कन्वेंशनल प्लांट्स। तो आइए देखते हैं व्हाट इज ए कन्वेंशनल प्लांट्स। तो कन्वेंशनल प्लांट्स यूज पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम डैम वाटर। तो डैम में जो वाटर स्टोर होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वेंशनल प्लांट में यूज की जाती है। द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड हेड ऑफ वाटर। तो वो जो एनर्जी मिलेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? वॉल्यूम और हेड ऑफ वाटर पे। द डिफरेंस बिटवीन height of water level in the reservoir and the water outflow level is called as a water head. तो water head क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन वाटर का जितना लेवल है डैम के अंदर वो रिजर्वायर का और वाटर आउटफ्लो से कितना नीचे फ्लो जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ए वाटर हेड। तो मीन्स क्या हुआ? कन्वेंशनल प्लांट्स में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं जो कि वाटर स्टोर होता है डैम में उसकी एनर्जी। मीन्स वाटर डैम में कितना वॉल्यूम क्वांटिटी में स्टोर है और उतने कितने हाइट तक स्टोर है ये डिपेंड करेगा कन्वेंशनल प्लांट्स में। नेक्स्ट इज ए पंप स्टोरेज प्लांट। तो पंप स्टोरेज प्लांट में क्या होता है? इन पंप स्टोरेज प्लांट a second reservoir is constructed near the water outflow from the turbine. तो एक रिजर्वायर हम क्रिएट करते हैं कहाँ पे? वाटर आउटफ्लो फ्रॉम द टर्बाइन। वाटर जो टर्बाइन से फ्लो होगा उसके नियरर सेकेंड रिजर्वायर को बनाने का काम करेंगे जिसको हम बोलेंगे पंप स्टोरेज प्लांट। When the demand of electricity is low, the water from lower reservoir is pumped into the upper reservoir. जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम रहेगी उस टाइम पे वाटर जो है वो डैम से मीन्स मेन रिजर्वायर से फ्लो होगा। दिस इज टू इंश्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द मेन रिजर्वायर टू फुलफिल द पीक लोड। तो जब रिक्वायरमेंट रहेगी हाई इलेक्ट्रिसिटी की उस टाइम पे सेकेंड रिजर्वायर से वाटर को पंप किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए पंप स्टोरेज प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं हम रन ऑफ रिवर प्लांट। तो रन ऑफ रिवर प्लांट इज नथिंग बट द इन दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी नो डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड हेंस रिजर्वायर इज अपसेट। रन ऑफ रिवर प्लांट में क्या होता है? डैम और रिजर्वायर ये यूज नहीं किया जाता, ये टोटली एब्सेंट रहेगा। तो वाटर जो फ्लो होता है उसे की एनर्जी हम यूज करेंगे। ए पोर्शन ऑफ रिवर इज डाइवर्टेड थ्रू ए पेनस्टॉक। तो रिवर का जो पोर्शन है वो डाइवर्ट करेंगे टू द पेनस्टॉक और चैनल टू द टर्बाइन। Hence, only the water flowing from the river is available for the generation. तो रिवर में जो वाटर रहेगा वही अवेलेबल रहेगा फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज द डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ रन ऑफ रिवर प्लांट। And due to absence of reservoir,
any oversupply of water is passed unused. तो जब भी ओवर सप्लाई ऑफ वाटर होगा वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. दैट इज द थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. दैट्स कन्वेंशनल प्लांट, पंप स्टोरेज प्लांट एंड रन ऑफ रिवर प्लांट. आइए इसके हम देखते हैं काफी डिटेल में. बाय दिस ट्री डायग्राम यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द hydroelectric power plant is classified. As hydroelectric power plant is classified in three ways, another three ways: availability of water flow, availability of water head, and according to the load type. तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्लो इसमें आते हैं थ्री टाइप्स: रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स विदाउट पॉन्डेज, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विथ पॉन्डेज एंड रिजर्वायर पावर प्लांट. तो ये टाइप्स हमने कन्वेंशनल और रिवर वाटर टाइप में देखे थे. तो इसका मीनिंग आपको समझ में आए. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड. दैट्स लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई. यानी डैम में वाटर कितना स्टोर रहेगा और उसकी हाइट कितनी रहेगी, उस पे भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्लासिफाई कर सकते हैं. थर्ड इज अकॉर्डिंग टू द लोड टाइप. तो लोड टाइप है हमारा बेस लोड यानी कंटिन्यूअस अप्लाइंग लोड रहेगा. देन पीक लोड रहेगा यानी डिमांड पे डिपेंड करेगा, दैट्स ए पीक लोड. एंड थर्ड इज ए पंप स्टोरेज प्लांट फॉर पीक लोड. तो अनफॉर्चुनेटली अगर डिमांड बढ़ती है तो पंपिंग से हम वाटर को सप्लाई कर सकते हैं टू द टर्बाइन, तो जिससे हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है. दैट इज ए डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. Now the time is to discuss practical outcomes achieved by this lecture as maintain various components of hydroelectric power plant. Program outcomes achieved by this practical as PO1, PO5, PO6 and PO7 is mapped. Thank you. Happy learning. Stay online.